is the greatest invention? Second question was, what or who is your inspiration? Third question was, communication and technology. Again in 2K 18 second semester, you were asked you were asked 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. 6 क्वेश्चन आपका आया हुआ. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटरनेट. Advertisement that has impelled me to buy things. Demonetization. Cyber crime. Electronics waste is a major problem in most of the countries since it has become a major cause for different disease. Write an essay not exceeding 300 words on health effect of electronic wastage. पूरा 14 नंबर का ये क्वेश्चन है. And one more question is there. For non-English speakers everywhere, English has become a common tongue. Support this statement from your own experience. In 2K9 first semester, 3 questions has been asked. Influence of Indian cinema on the youths. Number 2, your dream destination. Number 3, humans are becoming machine. 2K19 question, second semester, 3 question has been asked. Soft skills, environmental pollution, computer education. 2K20 a special examination, 3 question has been asked. Success and failures, life in a hostel, stress management. Now you can imagine that how much essay is important for you. Now you tell me, if you don't want to ask anything related to your, what to say, examination, I will like to solve some of your, what to say, essay portion. Do you agree? Yes, sir. क्योंकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें ऐसे लिखना क्या है. चलिए एक टॉपिक आपका आया हुआ है, वही टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक है 2K18 सेकंड सेमेस्टर, एडवर्टाइजमेंट दैट हैज impelled me to buy things. Anjali, did you understand the meaning of it? Don't shy. Tell me whether you could or not. Sir, I समझा आपने इसका मतलब? yes, sir. क्या बताइए. क्या बोले सर? मैंने टॉपिक बताया एडवर्टाइजमेंट दैट हैज impelled me to buy things. What did you understand by this sentence? Advertisement that has impelled me to buy things. What is the meaning of it? तो एडवर्टाइजमेंट में तो किसी चीज का प्रचार करना ही होता है ना. ये तो मैं जान रहा हूँ. इसमें आगे एक वर्ड लगा, कुछ सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दैट हैव impelled me to buy things. इसका अर्थ क्या हुआ? I don't know. Okay. Any one of you who is on my monitor or inside the class? Yes, बोलना चाहेगा इसका? खुशबू बताइए. Yes, sir. सर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें किसी चीज को खरीदने का मतलब वो सिर्फ प्रेरित होते हैं कि हम ये चीज खरीदे. प्रेरित नहीं, इम्पेल का मतलब होता है दबाव पड़ना, बाधित हो जाना. हाँ, दबाव. सर वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन. हाँ देखिए यहाँ पर समझिए, एडवर्टाइजमेंट्स रुकिए, विज्ञापन,
that have impelled me, जिसने मुझ पर दबाव डाला, प्रेशर डाला, मजबूर कर दिया, टू बाई थिंग्स, चीजों को खरीदने में। आज हम 100 फजूल चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक प्रचार का व्हाट टू से अटैक चलता रहता है ऑन एवरी मीडिया व्हाटसोएवर। आप मोबाइल चलाएं या टीवी चलाएं, वहां पर आपके एडवर्टीजमेंट्स कंटिन्यू आते रहते हैं और उनका असर आपके ऊपर इतना गहरा पड़ता है कि यू आस्क योर पेरेंट्स और माय चिल्ड्रन आस्क मी टू बाई दोज थिंग्स। ओके, आई थिंक टाइम हैज गॉट, थोड़ा लिखाते हैं तब डिस्कस भी हो जाएगा। some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. Others say that Sir, repeat again. some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. Others say that advertisement tells us about new products that may improve our lives. Full stop. Which you agree? Which you agree? ध्यान दें कि जब भी आप कोई एसे लिखते हैं, एसे को डिबेटिंग बनाइए। अगर आप डिबेटिंग नहीं बनाएंगे तो ये बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग इसलिए होगा कि आपके पास पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। अब यहां से पढ़ने वाला इंटरेस्ट से पढ़ेगा। क्या लिखा आपने? कुछ लोग ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हौसला देता है कि हम चीजों को खरीदें। किन चीजों को खरीदें जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं। भाई रिवाइव अगर आप खरीद कर ला रहे हैं तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड इट इज ऑलरेडी देयर इन योर कुकिंग बॉल। घर में हर आदमी भात बनाता है, उसमें माड़ इज स्टार्च, दिस इज इटसेल्फ स्टार्च। व्हाई यू आर परचेजिंग? जस्ट बिकॉज एडवर्टीजमेंट। हमारे एंसेस्टर्स इससे अगर कुछ क्रिस्पी बनाना चाहते थे वो हमारे क्लोथ्स को, तो दे यूज्ड स्टार्च। हम भात खाते हैं, माड़ तो पीते नहीं है, उसको डाल देते थे, हमारा कॉटन क्लोथ्स जो है वो क्रिस्पी हो जाया करता था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट वी आर थिंकिंग एट अदर वे। हम वहां उसको वेस्ट के तौर पर बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट की वजह से ये चीज नहीं। अब दूसरा पहलू भी देखना है। मैंने बराबर कहा है कि वी नीड बोथ एस्पेक्ट्स। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? Others say that advertisement tell us about new products that may improve our life. दूसरे लोग ये कहेंगे कि एडवर्टीजमेंट हमें नई नई चीजें बताता है जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो। Which you agree? आप किस बात पर सहमत? Did you understand how it is written? आपने देखा कैसे लिखा जाता है? अब यहां से Yes, चेंज sir. कीजिए पैराग्राफ। यस खुशबू, यू रिस्पॉन्डेड वेल।
आपने देखा एडवर्टीजमेंट के दोनों पहलू हैं। निगेटिव क्या है कि अननेसेसरी चीज बाहर देख देख कर हम लोग ले आते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी ये चीज मेरे लिए आउट ऑफ ये है। क्यों? क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट में देख लिया कि भाई हम जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और दूसरे लोग कहेंगे कि आपको एडवर्टीजमेंट ना हो तो हाउ विल यू कम टू नो। एक डॉक्टर यहाँ मोहल्ले में बैठता है, अगर 2-4 जगह वो नहीं लिखेगा, हु विल अंडरस्टैंड कि हम इस कॉलोनी में, यहाँ पर इस मार्केट में ये डॉक्टर साहब अब बैठने लगे। तो वहां इंफॉर्मेशन का काम अगर देखें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मानना होगा कि हमें जो है एडवर्टीजमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। चेंज द पैराग्राफ। अनडाउटली in this competitive world, undoubtedly in this competitive world, advertisement plays an important role in the buying nature of customers. It raises a controversial issue whether the advertisements impel us to purchase more than our need, or it improves our daily lives. However, I believe that wise use of advertisements can uplift. However, I believe that wise use of advertisement can uplift our lives. प्रदुमन, देखा तुमने किस तरह से ऐसे लिखे जाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज किया और आपने अब स्टाइल दिया उसका कि भाई हमारी जिंदगी में एक कॉम्पिटिटिव लाइफ चल रही, एडवर्टीजमेंट इसका एक अभिन्न अंग बना हुआ है, क्योंकि हम जब भी कुछ खरीदेंगे तो हमारे अंदर वो कस्टमर का नेचर तो है, और यहीं से एक विवाद पैदा होता है कि हम क्या करें। एडवर्टीजमेंट को ध्यान में रखें तो एडवर्टीजमेंट के दबाव में हम क्या करेंगे कि हद से ज्यादा गैर जरूरी चीजें जिनकी हमें रोजाना आवश्यकता पड़े या ना पड़े, जस्ट के हमने एडवर्टीजमेंट में देख रखा है, वो खरीद लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी। अब चूंकि डिबेट चल रहा है, आप दोनों पक्ष में है, तो आपको कोशिश करके ये भी दिखाना होगा कि आप इसमें अपनी क्या राय रखें। तो अपनी राय हमने रख लिया कि हालांकि मैं ये विश्वास करता या करती हूं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट का बुद्धिमानी से यूज करें तो ये मेरे जीवन स्तर को निश्चित रूप से ऊपर करता है, उठाता है। चेंज द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में किसी को कुछ पूछना था? ओके, कैरी ऑन। Change the paragraph. The vital function
function of advertisement, the vital function of advertisement, the vital function of advertisements is to inform, the customer about the entry of new product, the manufacturer content, price, or a service. It guides people through the market and services, and a blessing for those who have not enough time to search all these things, and enables better choice. Search all these things and enables better choice. Thus, it is informative and useful. अब आप अब शुरू कीजिए एक्सपेंड करना। प्रीति, ध्यान से सुने। आपका एडवर्टीजमेंट का मेन फंक्शन है क्या? एडवर्टीजमेंट कहते किसको? भाई, इसका सबसे बड़ा फंक्शन यह है कि आपको एज मच इंफॉर्मेशन जितना चाहिए वो देता है। तो कस्टमर जानेगा कैसे कि अब कौन सी नई चीज आ गई? जस्ट अज्यूम कीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको इन्वर्टर में एक प्रॉब्लम आता है कि कभी कभार आप उन प्लग्स को इंसर्ट कर देते हैं जो जनरल प्लग में नहीं जाना चाहिए, लाइक योर आयरन, लाइक योर हेवी लोड, आई मीन इमर्शन रॉड। लाइकवाइज आपका जो ये है इन्वर्टर है, उसका फ्यूज उड़ जाता है या कुछ और उड़ जाता है, सपोज्ड है। आपको ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन एडवर्टीजमेंट में आएगा कि भाई एक नया प्रोडक्ट या नया इन्वर्टर लॉन्च हुआ है जिसमें ऑल ऑफ ए सडन अगर हम कोई हेवी लोड दें तो इसका फ्यूज नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके सर्किट ऑटोमेटिक ब्रेक करके सप्लाई ही नहीं करेंगे, और जैसे वो ऑफ कीजिएगा ये नॉर्मल कोर्स में काम करेगा। आपकी एक परेशानी दूर हुई। मैन्युफैक्चर के बारे में जान रहे हैं, कंटेंट के बारे में जान रहे हैं, और सबसे ज्यादा आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है, इसकी सर्विसेज क्या है। मीन्स वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स थ्रू दैट इन एडवर्टीजमेंट। पहले कि ये कौन सा नया प्रोडक्ट है, इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है, इसमें कौन कौन सी खासियत है, इसका दाम मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, और सर्विसेज इसकी क्या है। ये लोगों को गाइड करता है कि आप जब मार्केट में जाते हैं या मार्केट से कांटेक्ट करते हैं तो उनकी सर्विसेज उनके लिए तब ब्लेसिंग्स हो जाती है जब वो किसी समस्या का समाधान हो। जैसे मान लेते हैं मैं जॉबफुल पर्सन और माय फैमिली डज नॉट लीव विथ मी, मेरी फैमिली कहीं और है, हम पर्सनल यहाँ रह रहे हैं। कपड़ा धोने के क्रम में अक्सर मेरा टाइम हो जाता है, मैं निकल जाता हूं, अब वो मशीन ऑफ होगी कि नहीं होगी, आगे कोई प्रॉब्लम आएगा उसका मुझे वेट करना पड़ता है। चलिए
अब एक एडवर्टीजमेंट आएगा कि ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप सब कुछ डाल दीजिए और गो टू योर ऑफिस और योर कॉलेज। जब आप लौट कर आएंगे ये सब कुछ कर चुका होगा, पानी जितना लेना है टाइम टू टाइम लेता रहेगा, जितने सर्फ्स और जो भी डिटर्जेंट्स लेने हैं वो ले लेगा। ये जब धुल जाएगा तो ये रिंजिंग का भी काम कर देगा, आफ्टर रिंजिंग ये सुखा भी देगा और एक चैम्बर में ये रखा रहेगा। ये एक नई बात आपने जाना, और इससे आपके एक समस्या का समाधान निकला कि आप एक परेशानी में थे कि हम क्या करें, ये भी करना जरूरी है और ये करते हैं तो ये दिक्कत आती है। आपको एक बेटर चॉइस देता है, इसलिए आप एडवर्टीजमेंट के बारे में ये कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक मामले में बहुत यूजफुल है, वो ये कि ये आपको 100 इंफॉर्मेशन देता है। कल हम लोगों का जब समय था तो पेपर में कोई बात जान पाते थे। आज बच्चा मैट्रिक करता है तो उसको इबंडेंस जिसको कहा जाए अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से शुरू हो जाता है कि आप मैट्रिकुलेट है तो ये कोर्स कर सकते हैं, इंटर पास है तो ये कोर्स कर सकते हैं, लाइक वाइज। इसके बाद कोई क्लास भी है? ओके, आपने समझ लिया कैसे एडवर्टाइजमेंट। डिफेक्ट ये है कि हम उसकी बुराई को नहीं देख पाते। जैसे कुरकुरे बच्चे खाते हैं, अरे बच्चों को दूध ज्यादा पीना चाहिए, बच्चों को हनी खाना चाहिए, बच्चों को वो डाइट्स लेने चाहिए विच आर फुल ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे आर ग्रोइंग चाइल्ड, बट ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ advertisement they are attracted towards junk food which is totally harmful for them। तो साइड इफेक्ट तो है ही है। अगर उस बच्चे को मैंने टीवी ना दिखाया होता या मोबाइल पर वो एड्स बीच बीच में नहीं आए होते, he would not have attracted। वो अच्छे से खाता या दाल का पानी वगैरह प्रोटीन जो कहते हैं he would have taken। एनीवे ये आप पर डिपेंड करता है, पैराग्राफ चेंज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट limitations of words, that is why you cannot exceed the words। so please take in your mind that words are counted very easily। आप पहले सेंटेंस को गिन लें कि मेरे एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स आते हैं, जितना वर्ड्स लिखना है उतना मल्टीप्लाई करके आप सेंटेंस को बढ़ा लीजिए। इफ योर सेंटेंस कैरीज 10 वर्ड्स, जस्ट एज यू, आपको क्या कह रहा है भाई, 300 वर्ड्स लिखना है तो 30 लाइन लिखना है, 250 वर्ड्स लिखना है 25 लाइन लिखना है। इट इज वेरी इजी टू काउंट। आप उसी हिसाब से बढ़ते जाए। लेकिन एक बात याद रखेंगे, हर ऐसे में पैराग्राफ चेंज करने से इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, मैं लिखाऊंगा नहीं, अगर आपके पास 2-4 मिनट है तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे घूमते हैं। हैव यू गॉट टाइम? यस। अभी जो सवाल रेस किया कि इसके निगेटिव एस्पेक्ट सर ने नहीं लिखा है, आ जाइए अब देखिए मैं अपने ऐसे को कैसे बदलूंगा। चेंज द पैराग्राफ, मैं लिखा नहीं रहा हूं, जस्ट लिसन केयरफुली। ऑन द अदर हैंड, advertisements not only inform us about a new product but also force people to want them। in other words, modern commercials not merely matchmaker of a customer but actually interfere with the buyer's desire and creating artificial needs। for instance, an advertisement of pain relief equipment impels us to buy that, even though your pain is relieving by the pain balm। Additionally, the buying pattern and success of product is highly dependent on the publicity of the product। This shows the importance of advertisement in determining the success of product। On the contrary, there are so many products which meet the requirement of the consumer fail to catch the eyes of the society due to lack of knowledge about the product
Admittably, many companies allocate a major share of their budget for introducing new products and using wisely for hiring celebrities, make attractive advertisements, giving discounts, providing after sale discounts and so on. ध्यान दे रहे हैं किसके निगेटिव एस्पेक्ट्स पर आ रहे हैं हम? आर यू वॉचिंग दैट? आर यू वॉचिंग दैट? यस आप अच्छे से जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स इज इंजूरियस एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. इस पर 2-4 साल पहले बहुत परेशानी भी आ चुकी है, लेकिन ड्यू टू के इसका एडवर्टीजमेंट सलमान खान और अदर सेलिब्रिटीज करते हैं, मैं और हाँ आप इसे पीने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग, दे देमसेल्फ डू नॉट यूज दैट. वो भी जानते हैं कि इसमें एसिडिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पेस्टिसाइड्स होते हैं, सो मेनी ऑब्जेक्शंस हैव कम, इसलिए इसका पीना कोई लाभ नहीं देता है. मगर ड्यू टू एडवर्टीजमेंट माइनस पॉइंट क्या हुआ कि हम कोकोनट वाटर पी रहे थे और सस्ता पी रहे थे, जितने में हम यहाँ ये पी रहे होते हैं कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक्स, उससे कम पैसे में हम लोग नारियल पानी पी रहे होते थे, जो गॉड गिफ्टेड नेचुरल गिफ्ट है, मगर उसको हमने रिप्लेस कर दिया ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट. अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसे केमिकल्स को पी रहे हैं जिसके बारे में ऐड करने वाले खुद डॉक्टर नहीं है. सेलिब्रिटीज आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस इट. क्या उनको पेस्टिसाइड्स के बारे में, उसमें जो साइड इफेक्ट्स होने वाले कंटेंट्स हैं उसके बारे में कोई जानकारी है? आर दे डॉक्टर्स? मगर ड्यू टू दैट हम पीते हैं, तो नुकसान तो है इसका. हम कुदरत से दूर हो रहे हैं और कर क्या रहे हैं? आर्टिफिशियलिटी जिंदगी में ला रहे. उस कोल्ड ड्रिंक से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम नारियल का पानी पीते होते तो हमारे मुंह के छाले दूर हो जाते, हमारे किडनी का जो सफाई है वो होता. और सो मेनी मेडिकल यूसेज आर देयर व्हेन यू विल सर्च इट ऑन गूगल के सिर्फ नारियल का पानी पीने से आपको कितने फायदे. साथ ही साथ एक गरीब का भी भला हो रहा था. हम मल्टीनायर्स से दूर थे, वो बेचारा ठेले से कुछ बेच रहा है तो दिन भर उसका भी कुछ फायदा होता था. तो यू कैन राइट इन योर ओन वे कि एडवर्टीजमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में धीरे धीरे इतना ज्यादा इंटरफियर कर गया है कि आप उसको मैटर ऑफ प्राइड बना दिया है. अब कोई आपके सामने एक गिलास कोकोनट वाटर लेकर आए तो यू विल फील सरप्राइज्ड, या अगर वो लेकर चला आया तो और आप सरप्राइज फील कीजिएगा, व्हाट एल इज डूइंग. लेकिन अगर वहां पर कोई कोल्ड ड्रिंक्स पेश करता है तो आप धड़ल्ले से पी लेते हैं. यू आर नॉट नोइंग द साइड इफेक्ट ऑफ दैट. और कोई क्वेश्चन? राजन कुछ पूछना है? सर. प्रीति? नो सर. तो ये बात आप समझ गई कि आपको जो विचार हो लिखना लिखिए, बट लिखते समय बायस्ड नहीं रहे कि कोई चीज सर्वथा गलत सर्वदा सही नहीं. यस सर, गॉट इट. डू यू अंडरस्टैंड? आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बंद घड़ी भी आपको 24 घंटे में 2 बार करेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? अगर हम किसी घड़ी की बैटरी निकाल कर फेंक दें तो भी 2 बार तो वो आपको अपने आप में करेक्ट होना दिखाई दे. इसलिए एडवर्टीजमेंट सर्वथा गलत है ये नहीं लिख सकते. सही है ये भी लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए हैं. कोशिश करेंगे तो आप अपने ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एडवर्टीजमेंट हार्मफुल चीजों का भी होता है. जैसे पेन किलर हमें नहीं खाना चाहिए, मगर हम लोग खा रहे हैं ड्यू टू एडवर्टीजमेंट के अगर हम ये दवा खा लेंगे क्रोसिन की तो मेरे सर के दर्द दूर हो जाएंगे. आई शुड कंसल्ट डॉक्टर, बट वी आर कंसल्टिंग ऑन मेडिसिन विच मे बी हार्मफुल.
हाँ बाम लगा लेते होते तो ये आउटर एप्लीकेशन है, इससे नुकसान नहीं करता। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं दोनों तरफ। और क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। 10:30 बजे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। 12 बजे तक आपका अटेंडेंस मुझे पहुंच जाएगा। 12:10 तक मैं एक्सेप्ट करूंगा। 12:10 के बाद आप जो लोग डिले करेंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनेशन। जो आंसर्स भेजने हैं वो पीडीएफ में भेजने हैं, विथ फुल डिटेल्स भेजने हैं, और उसके ऊपर अगर कैप्शन भी डाल दें तो गुड। दैट शुड बी सेंट ऑन माय पर्सनल अकाउंट which 773898650 ग्रुप में कहीं नहीं थे। और कुछ पूछना हो तो पूछना। टाइम आपका 1.5 घंटा होगा, दैट इज वाई आई हैव नॉट मेंशन द टाइम इन योर एग्जामिनेशन। सुजीत, यू आर आस्किंग। सुजीत लिख सकते हैं। विजिबल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने असाइनमेंट कुछ कुछ बच्चों का देखा है, अच्छा नहीं लगता है कि इतना पब्लिकली आप लोगों को समझाए, लेकिन यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कितना खूबसूरत खूबसूरत बना के आपके सीनियर्स ने मुझे दिया था। उसके अंदर एक रिसर्च वर्क था, एक टॉपिक था, उसको ब्यूटिफाई करना चाहिए था, उसके लिखने में राइटिंग का ख्याल करना चाहिए था। 5 नंबर एक असाइनमेंट कर रहे थे आप। एग्जामिनेशन में टाइम का प्रॉब्लम था। क्या असाइनमेंट का सर निर्मल लास्ट क्या डेट, पूछा असाइनमेंट का सर लास्ट डेट होगा?